Everything is clear about different proportion to you students? Yes. आप लोगों को कोई doubts? हाँ जी बच्चों, any doubts? Doubts बच्चों? So no. चलिए, आज हम will be doing some more questions. एक assignments करते हैं बच्चों उस पे. First of all, we'll be doing some assertion reason questions. Is screen visible to you? Yes. पहले तो first question note करो आप जरा जल्दी. Please note down the first question. Here assertion is given 6:20 to proportionate to 20:30. Right? And reason is if two ratios are equal, we say they are in proportion. First of all, please note down the question, बच्चों. Please note down the question. Visibility clear है बेटा? आपको नजर आ रही है स्क्रीन प्रॉपर? Yes. राइट. बेटा सेक्शन F जल्दी से बैठिए आप लोग. हाँ जी, क्वेश्चन नोट हो गया बच्चों? जी. अच्छा, ये ऑप्शंस नहीं नोट करनी है, ओनली क्वेश्चन क्वेश्चन नोट करना है. क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों? Yes. Excuse me, sir. जी बेटा, बोलिए बोलिए. Sir, screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? सर दिख नहीं रहा सर. अच्छा, एक मिनट और. Good morning, sir. Hanji, sir. Now it's better. Right. Thank you, ma'am. Okay, sir. Thank you. हाँ जी बच्चा, नोट हो गया? Yes. Now, in this question, assertion 6:20. Not done. Not done. Better please do it fast. You are taking too much time. So बच्चों, हमें चेक करना है कि is this true or not? Are they in proportion or not? 6:20. कैसे चेक करते हैं? No. चेक कैसे करते हैं बच्चे? Product of extreme is 60 16 to 30. That comes out to be 180. product of means 20 what it becomes. 40%. So both are not equal. So therefore it is. सर 20 आना है 20 आना है 30 की जगह. Achha, sorry, 20 to 22. So this comes out to be 400. Then also it is not equal. Hence the assertion is. What is reason? If two ratios are equal, we say they are in proportion. The reason is true or false? True. तो कौन सी चॉइस हो जाएगी बच्चों? आंसर D will be the correct option, right?
So we move to the next question, बच्चों. This is the next question. Please note down this question, बच्चों. Two ratios are equivalent if the fraction corresponding to them are equivalent, right? So what is the meaning of this? Two ratios are equivalent if the fraction corresponding to them are equivalent. हाँ जी बच्चों, नोट हो गया क्वेश्चन? हाँ जी स्टूडेंट्स, नोट हो गया? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं बेटा. Two ratios are equivalent if the fraction corresponding to them are equivalent. Please tell me what is the meaning of this statement. Please tell me what is the meaning. कौन बताएगा बच्चे? Please raise your hands. Or shall I ask someone? हाँ जी, सुनैना कौर in section C. हाँ जी सुनैना, please come. Good morning, sir. Good morning. What is the meaning of the assertion? Two ratios are equivalent if the fraction corresponding to them are equivalent. हाँ जी बेटा, क्या मीनिंग है बच्चे? देखो बेटा, जब तक आपको क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ आएगा, आप क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट करेंगे? देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी अभी आप मतलब दिस इज योर 6th क्लास और 6th में ही असर्शन रीजन आप पहली बार फेस करते हो. एंड आई डू एग्री कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं दीज आर बिट ट्रिकी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट इट, राइट? सो अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा क्वेश्चन का बच्चे, so how will you do it? Who will tell me the meaning of the question? Nobody is responding. किसी को मीनिंग नहीं समझ आया बच्चे, फिर आप क्वेश्चन कैसे करोगे? Have anyone done the question? Please raise your hand अगर किसी ने किया है. हाँ जी बच्चे, सेक्शन एफ में प्लीज बताइए मुझे क्या मीनिंग है फर्स्ट स्टेटमेंट का. यू सिट डाउन सुनैना. Sir, the statement means that when we are checking the equivalent fraction, when we are dividing it into the simplest form of the equivalent fraction, the fraction that comes immediately after we divide is called corresponding. Yeah, you are very correct, beta. Very, very good. So the meaning of this statement is, let me take an example. If I take a ratio, let's say 2/3, and another ratio I take 4/6. Now we have two fractions here, 2/3 and 4/6. Yes or no, students? Yes. Now, if we have to check whether these two fractions are equivalent or not, whether ratios are equal or not, so what we'll do? There are two ways. Either आप इसको equivalent form में ले आइए, this simplest form. Either you convert fractions into the simplest form, right? Is this clear or not? And the second thing is, or you check whether they are in proportion or not. Is this clear? Either you check the product of means and product of extremes are equal or not. So there are two ways to do it. But the meaning of this statement is
if we have two fractions, let's say this fraction and this fraction, if the fraction corresponding to them are equivalent, if the fractions are equivalent, then the fractions, the ratio will be equivalent. Is this clear? बच्चों समझ में आया या नहीं आया? अगर फ्रैक्शन इक्वल है तो रेशो भी इक्वल होगी, और रेशो इक्वल होना मीन्स proportion, right or not? Sir, yes. The meaning of the two ratios are equal means they are in proportion. तो आपको समझ आ गया बेटा क्वेश्चन का मीनिंग? आप देखिए यहाँ पे भी दोनों जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, सो दिस फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस फ्रैक्शन। और अगर यहाँ पे भी देखिए आप, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना आ रहा है बच्चों? Sir, 12. और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स? Sir, 12. So what does this mean? So they are in proportion or equivalent to each other. So this first statement is true. First statement is True. what about the next statement? Sir, sir, it is false. Means the product of these two is equal to these two or not? Or no. No, because the product of extreme is 18 and product of mean is 8. Right? So therefore, which will be the right choice? C option. A option, B option, C option, D option. Which option? Sir, C option. Because A is true but R is. Is false. Come to the next question. Please note down this question, bachcho. Assertion 10 by 3 is the lowest form of 50 upon 15. And reason is 30 ratio 9 is equivalent of 10 ratio 3, 50 ratio 15. हो गया बच्चे? 2 मिनट। जी स्टूडेंट्स हो गया बेटा नोट डाउन? Assertion and reason have you noted down? Options नहीं नोट करनी बेटा ABCD. चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा. Assertion is 10 by 3 is the simplest form of 50 upon 15. Is it true? Yes. 15 और 15 को अब 5 से कट कर देंगे. So yes. What it becomes? So 10 by 3. आपने इसको 5 से कट किया. 5 10 का 50 and 5 3 का 15. तो 10 by 3. So means this statement is True. next one. 30 ratio 9 is the equivalent ratio of 10 ratio 3, 50 ratio 15. Sir, false. Why false? Sir, because product of means and product of means are not correct. एक मिनट बच्चे, यहाँ पे क्या बोला? इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 10 by 3 आर दे इक्वल और नॉट? सारे इक्वल नहीं आ रहे हैं. यस और नो? बेटा ये कॉमा है बीच में. दिस इज कॉमा. बेटा 30 ratio 9 is equivalent ratio of 10 ratio 3 or not? Sir, yes.
and 50:15. Sir, yes, it is also. So what is the meaning of this statement? So that means it is also true. Yes. Now is it the correct explanation? Sir, no, sir, B option. Why not? बेटा अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, लोएस्ट फॉर्म जो है अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है. Sir, because both the values of both the questions are not the same. Yes, right. ठीक है. So both are, your explanation is wrong beta. This and this are same, this part, right? These are same, but it does not explain what is the meaning of lowest form. Is this clear? Lowest form, बच्चे, both these things are same, but the this explanation जो reason है that does not explain what is the meaning of lowest form or simplest form. Is this clear? Is this clear or not, ji? Yes. So both are true, but not the correct explanation. Hence, the answer is B. B. We move to the next question. हाँ जी बच्चों, just have a look at this question. First of all, note down this question. Please note down the question, बच्चे. तो भी यहाँ पे बैठे हैं ई वाले सी वाले डी वाले जो भी है. हाँ जी बच्चों, हो गया नोट डाउन. Yes. Now, what is the meaning of awakening? हाँ जी बच्चों, what is the meaning of awakening? हाँ जी, Sir, jagna. Sir, to wake up. जागना बच्चे. ठीक है, मतलब अब वो क्या कह रहा है कि इन्हें 24 hour clock awakening time is represented. मतलब जो ये वाला पार्ट है, any person is awake. During this time the person is awake, and this is sleeping time. Is this clear? Now what you have to find the ratio of sleeping time. न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चों? स्लीपिंग टाइम अपॉन टोटल अवेकनिंग टाइम. नाउ फाइंड आउट द रेशियो. प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द रेशियो. फॉर हाउ मेनी आवर द पर्सन इज स्लीपिंग. हाँ जी बच्चे, कितने घंटे के लिए सो रहा है पर्सन? 6 hours. एंड अवेकनिंग टाइम कितना है? 18 hours. 18 hours. So what is the ratio? 6. 1:3. बेटा रेशियो लिखते हैं हम, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखते रेशियो. Yes. So it has to be 1:3. 3. सबको क्लियर हो गया? Yes. राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Now we have a case study. Please note down the case study बेटा. क्वेश्चन रहने देना नोट करने के लिए. Sir, please repeat again. प्रीवियस क्वेश्चन. Yes. हाँ जी बेटा. See, if you see this diagram, so there are four quadrants. मतलब 24 hours को 4 parts में डिवाइड किया हुआ बेटा. Right? So how many hours is this? 6 hours, 12 hours, 18 hours and 24 hours. जो shaded part है, person is sleeping during that time or awakening.
बेटा शेडेड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? waking part. आप लोग भी स्लीपिंग मोड में चले गए हो आई थिंक, है ना? स्लीपिंग वाला क्वेश्चन में से नींद आ गई है। बेटा शेडेड पार्ट जो है दैट रिप्रेजेंट द Waking time. वेकनिंग टाइम, और जो अनशेडेड है दैट रिप्रेजेंट Sleeping time. स्लीपिंग टाइम। तो स्लीपिंग टाइम इज हाउ मच? 6 hours. How much is the awakening time? 18 hours. 3 hours. So we were supposed to find out the ratio of sleeping time to the awakening time. Sleeping time is 6 hours. Awakening time is 18 hours. तो 6 upon 18 आपने जब कट किया उसको तो it comes out to be 1/3. 1/3. So therefore the ratio of the sleeping time to awakening time is 1:3. अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं बेटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्लीपिंग टाइम टू द टोटल टाइम? यस टेल मी नाउ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्लीपिंग टाइम टू द टोटल टाइम? देखिए बेटा स्लीपिंग टाइम इज 6 hours, टोटल टाइम इज 24 hours. So what it becomes? 6 upon 24. 1:4. Now if I say what is the ratio of sleeping time to the total time? 1:4 आ गया. And what is the total time to the awakening time? Total to the awaken, बताइए जरा. टोटल टाइम कितना है बेटा? 4. It will be 4:3 because the total time is 24 hours and awakening time is 18 hours. This is clear? Yes. So it has to be 4:3. So we move to the next question, case study. Please note down this case study. There are 45 persons working in an office. If the number of females is 25 and the remaining are males. नोट कीजिए बेटा फटाफट से केस स्टडी. हाँ जी बच्चों, ये है ठीक है 10 कॉपी करा स्कैनर गो लास्ट में नहीं की तो डाउन बेटा. Okay बेटा, note down. Yes. Now we comes to the questions. How many males are working? 8. बेटा total is 45. Total is 45. Female is 25. तो बैलेंस कितना हो जाएगा? Sir, please wait for some time. Okay, okay. Sorry बेटा, sorry.
हाँ जी बच्चों, हो गया, चले अब आगे। Sir, yes. तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेल्स आर वर्किंग। देखिए बच्चों, टोटल जो पर्सन वर्किंग है दैट इज 45। The students are working, sir. Please wait. Sir, please, sir, done. हाँ जी बच्चों, एवरीवन हैज डन ऑल द क्वेश्चंस। हाँ जी बेटा। नाउ प्लीज कम कृष्ण फ्रॉम सेक्शन ई। कृष्ण फ्रॉम सेक्शन ई, अपनी नोटबुक्स लेके आना बच्चे जब भी आ रहे हैं। वेयर इज कृष्ण? इज ही देयर? सेक्शन, हाँ जी एब्सेंट। मनजोत कौर डी, सेक्शन डी में मनजोत कौर। Sir, she is absent. दीपिका इन सेक्शन ए, दीपिका इन सेक्शन ए, प्लीज कम बेटा। Sir, yes. बेटा हैव यू डन ऑल द क्वेश्चंस? Sir, no. क्या किया अभी तक आपने बेटा? आपने क्वेश्चंस नोट कर लिए सारे? Yes. कोई बात नहीं, चलिए अभी मेरे साथ खड़े होके जरा क्वेश्चंस करते हैं। अब जरा, हाँ जी बताइए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अच्छा पहले तो मुझे एक बात बताइए, जो ये केस स्टडी लिखी है इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस केस स्टडी? सर, जो 25 वर्कर्स है वो इन ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और जो 20 हाँ बोलो बेटा। वर्क कर रही हैं और जो बचे हैं वो मेल है वर्क कर रहे हैं। अच्छा तो मेल कितने बचे बेटा? 20। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 20। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बताइए बेटा। द रेशो, बेटा डोंट टेल, पीछे से किसी की आवाज ना आए। सर 20 to 25। तो 25 कितना बनेगा बेटा? सर 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट गिव द रेशियो ऑफ मेल्स टू द टोटल नंबर। हाँ जी बेटा, मेल्स टू द टोटल, मेल्स कितने हैं बेटा? 4:9। मेल्स कितने हैं? सर 20। और फीमेल्स कितने हैं? फीमेल्स कितने हैं? 25। 25 और टोटल? सर 45 तो हमें यहाँ किस किस की रेशियो फाइंड आउट करनी है? और टोटल तो कितना आएगा बेटा? 4:9 45, तो इसको कट करो, कितना आ रहा है? 4:9। पीछे से मत बोलिए, देखिए here to give the answer, let her do the answer। हाँ जी बच्चे प्लीज सिट डाउन। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, सिमरप्रीत कौर फ्रॉम सेक्शन सी। सिमरप्रीत फ्रॉम सेक्शन सी एब्सेंट। हाँ जी बेटा। Sir, she is gone for extra class. राइट। अक्षित फ्रॉम सेक्शन बी, अक्षित फ्रॉम सेक्शन बी। हाँ जी बेटा, हो गया आपका? सर मैं अभी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, खड़े होके करते हैं, यहीं पे कर जरा मेरे साथ ही कर बेटा। बताइए जरा कौन से क्वेश्चन तक पहुंचे आप? सर सी। तो मैंने करा दिया, वही वहीं तक पहुंचे हो बेटा आप। डी क्वेश्चन करते हैं जरा। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ डी। गिव द रेशियो ऑफ टोटल पर्सन टू द नंबर ऑफ फीमेल्स।
Don't talk. हाँ जी बोलिए बच्चे. 2 minutes. बेटा बाद में नोट कर लेना, पहले मुझे क्वेश्चन करा दो जरा. बताओ क्या आएगा फोर्थ क्वेश्चन. जब नोट करने का टाइम दिया था तब क्या कर रहे थे आप? हाँ जी बताइए जरा क्या. फोर्थ क्वेश्चन. गिव द रेशियो ऑफ टोटल पर्सन्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स. टोटल पर्सन कितने हैं Sir, 45. और फीमेल्स कितने हैं बेटा? Sir, 25. तो क्या आंसर होगा इसका? Sir, 9:5. 9:5. देखिए 45 अपॉन 5 कट हो गया बेटा दोनों. So ratio will be 9:5. next is बेटा give two equivalent ratio of the ratio of number of males to the number of females. नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स की रेशियो क्या आई थी बेटा? Sir, 9:5. हाँ जी Sir, 4:5. 4:5. तो अब इसकी टू इक्विवेलेंट रेशियो देनी है बेटा. बताइए जरा क्या क्या होंगी इक्विवेलेंट रेशियो. हाँ जी बताइए बच्चों. देखिए बेटा ये हमारे पास है 4:5. इसकी जब भी इक्विवेलेंट रेशियो निकालनी है ना कुछ, एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दूसरी बार 3. 3 से कर दो, आ गई इक्विवेलेंट रेशियो. कितना आएगा? What will be this becomes to? अरे बता. 8. थोड़े पूछ लिया मैंने आपसे. 4/5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2/2 से, क्या आंसर आएगा? Sir, 8:10. 8:10. और दूसरे का? Sir, 12:15. वेरी गुड. प्लीज सिट डाउन. बच्चे सारे क्वेश्चंस क्लियर है आप लोगों को? Sir, yes. स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज टेल मी. Sir, no. नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं बेटा एक और. देखिए बेटा. Fifth part. हाँ जी In fifth part. The previous one's question is in fifth part. हाँ जी क्या प्रॉब्लम है फिफ्थ पार्ट में बेटा? उसने पूछा है गिव टू इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स. व्हाट वाज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू द फीमेल्स? 4:5. सेकंड पार्ट में किया है ना हमने, बी पार्ट में. तो 4:5. Yes. Supposed to find out two equivalent ratios. 4/5 और 4:5. जब आपको इसकी इक्विवेलेंट रेशियो निकालनी है तो एक बार दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. कितना आ गया? और दूसरी बार 3 से कर दो, 4 से कर दो, किसी से भी कर सकते हो बच्चे आप. देखिए आपको 2 और 3 से करना है. बट मेक श्योर जो आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट नंबर शुड बी सेम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 को 2 से कर दिया और 5 को 3 से कर दिया. यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द रेशियो बाय द सेम नंबर. Yes. चलिए क्लियर है बेटा? किसने डाउट पूछा था ये? कोई डाउट तो नहीं बेटा? अब नेक्स्ट केस स्टडी पे आ जाते हैं बेटा. Tina went to a park 150 meter long and 90 meter wide. She completed 3 rounds of the park. पार्क की जगह पार्क आएगा. तो यहाँ पे आएगा 90 मीटर वाइड.
करेक्शंस कर लो इसमें बेटा, नोट करो जरा इसको जल्दी से। प्लीज नोट डाउन दिस केस स्टडी। What is the Meera went to a park 150 meter long and 90 meter wide. She completed 3 rounds of the park. क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। अब यहाँ पे देखिए हमने दो टॉपिक कंबाइन किए हैं। कौन कौन से टॉपिक कंबाइन किए जी? रेशियो एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है। एरिया आ गए। यहाँ पे कौन सी शेप का पार्क है बेटा? ये रेक्टेंगुलर पार्क है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, राइट। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का? लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय 2। ये होता है बच्चे, दिस इज द पेरीमीटर। तो यस, आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लेंथ भी गिवन है और ब्रेड्थ भी गिवन है। लेंथ इज 150 मीटर और ब्रेड्थ इज 480 मीटर। जी। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कीजिए बेटा, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। मैंने फार्मूला भी लिख दिया है, जिन्होंने कर लिया है बेटा लेट द अदर्स आल्सो डू इट। हाँ जी बच्चों, हो गया? या स्टूडेंट्स? बेटा देखिए क्या करना है आपको, पेरीमीटर का फार्मूला लगाना है। कर ले। करो जरा प्लीज डू इट। हो गया बच्चों? अब तो हो गया होगा बेटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये कितना आ गया बेटा? 150 प्लस 90 कितना होता है? 240। 40 multiplied by 2 is 480 meter, right? Now what is the second question? What is the distance covered by Meera? 1440 कितना आ गया बेटा? 1440 मीटर। क्या आया बेटा ये? हाँ जी, कैसे आया बच्चों? By multiplying the 3 by 480. बेटा अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है कि he has taken 3 rounds. सपोज कीजिए she has started from this point A. राउंड हो गया बेटा, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया एक राउंड।
तो मीन्स 1 पेरीमीटर कितना कंप्लीट हुआ, 2 टाइम्स पेरीमीटर कंप्लीट हुआ, 3 टाइम पेरीमीटर्स। तो जो आपके पास पेरीमीटर आ गया बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ। क्लियर? Yes. चलिए तो कितना आ गया बच्चों? 1440 meter. Now what you have to find, give the ratio of perimeter of the park to the total distance covered। क्या रेशियो हो जाएगी बच्चे? अब पेरीमीटर कितना था? 480 और कितना उसने कवर किया है? 1440. इनकी रेशियो कितनी आएगी? 49:144. ध्यान से देखो जरा और देखिए क्या हो सकता है। 1:3. 1:3. 1:3 नहीं हो गया बेटा, देखो 480 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 1 से कट कर दिया, इसको 3 से, तो 1:3 आ जाएगा बच्चों। यस और नो? इज दिस क्लियर? सो इट विल बी 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, डी पार्ट। राइट द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पार्क। लेंथ कितनी है बेटा? 150 मीटर। व्हाट इज द विड्थ? 90 meter. दोनों की बच्चे आपने क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है, मींस लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये हो गया 150/90। इसको कट करके बताइए व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और द लोएस्ट फॉर्म? 5/3. 1/3। अच्छा So 5/3. बेटा 30 पे हो रहा है, 30 3 जा 35 जा 5/3 आएगा बेटा। 5/3. राइट, सो दिस इज 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ई क्वेश्चन। Ramesh walked in another park of length 250 meter and 150 meter wide. Is the ratio of length and width of park 1 and 2 are in proportion? ये बताइए कि बेटा दोनों जो नए पार्क हैं की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों रेशियो में है क्या? Ramesh walked in another park of length 250 meter and 150 meter wide. Is the ratio of length and width? बेटा जो पहले वाला पार्ट था उसकी लेंथ एंड विड्थ की रेशियो कितनी आई थी? पहले कितनी आ रही है? कितनी आ रही है रेशियो इनकी? 5/3. 5:3 आ रही है बच्चों? 5 5 right? So both are same. रेशियो सेम आ गई बच्चे दोनों पार्ट्स की। Yes. Sorry, yes. तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes. कोई डाउट बेटा इसमें? No. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Excuse me, sir. बेटा सर हम इस क्वेश्चन को प्रोपोर्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। यस, हाँ जी। और कोई डाउट बेटा, और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट केस स्टडी में चले बच्चे हम। दिस इज द नेक्स्ट केस स्टडी, नोट डाउन कीजिए और जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाइए इसके जरा। नोट हो गया बेटा स्टेटमेंट? There is a rectangular field, its length is 50 meter and breadth is 15 meter.
हाँ जी बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन देखिए इसके। हो गए बेटा नोट डाउन? Yes, no. Yes. Sir, no. जिनका नहीं हुआ बेटा फटाफट से कीजिए। तो अब तो हो गया होगा आई थिंक। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। There is a rectangular field, its length is 50 meter and breadth is 15 meter. First question is find the ratio of length and breadth. Length और breadth की रेशियो फाइंड आउट करनी है जी, कितना हो जाएगा? हाँ जी बेटा देखिए लेंथ कितनी है? रेशियो 15 आ गया बेटा। आ जाएगा बेटा 10:3। Yes. Yes. यस। Yes. सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। एरिया एंड पेरीमीटर। सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। एरिया कितना आ रहा है? 750 meters square. कितना आ रहा है बेटा? 750 meters square. 750 मीटर स्क्वायर। हाँ जी। एंड देन इज पेरीमीटर कितना आ रहा है बच्चों? 130 meter. प्लस हाँ जी, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स एरिया एंड पेरीमीटर? So 7. बेटा मैंने ना कल आपको एक रूल बताया था जब भी आपको रेशियो लेनी है। क्या रूल था? कि बोथ द यूनिट शुड बी Same. सेम। अब यहाँ पे एरिया की यूनिट क्या है? पेरीमीटर की। Meters. क्या इनकी हम रेशियो ले सकते हैं? रेशियो पॉसिबल ही नहीं है ना इनकी, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वर्ड और ऐड होना जाना चाहिए था कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया एंड पैरामीटर्स इट्स वैल्यू ओनली। अगर हम यूनिट लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पे यूनिट्स भी गिवन है, तो यू कांट टेक द रेशियो। बट अगर आपको जस्ट नंबर्स की लेनी है रेशियो, तो व्हाट विल बी द रेशियो? समझ में आया ना बेटा? देखो रेशियो जब हम लेते हैं तो यूनिट शुड बी सेम। तो बट यहाँ पे तो यूनिट्स डिफरेंट है। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes. Yes. अगर आपको जस्ट नंबर्स की लेनी है दैट विल बी 750 रेशियो 130। इसको कट कर देंगे 0 0, तो रेशियो आ जाएगी 75 Ratio 30. नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज ₹5? 650. बेटा 1 मीटर वायर की कॉस्ट जो है ₹5 है। दिस इज पेरीमीटर। फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आप उसकी साइड पे यहाँ पे कुछ फेंस लगा रहे हैं। फेंस का मतलब होता है कुछ वायर लगा रहे हैं या कुछ ब्लॉक लगा रहे हैं जिससे यू कैन कवर दैट। आउटर बाउंड्री होती है ना जो, दैट इज आल्सो ए फेंस। क्लियर? सो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द पेरीमीटर बाय कॉस्ट। कॉस्ट इज ₹5। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस? 50 राइट? Yes. कोई डाउट बेटा इसमें? Sir, our first period is started. राइट राइट बेटा, मैं भी आपको ब्रेक दे रहा हूँ।
Thank you very much for joining. Thanks a lot, teachers, for your cooperation. Right, bachcho, thank you.